ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं बनाऊंगी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, ओके, और इधर मैं बनाऊंगी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। अच्छा, insect pollinated and wind pollinated flower, as far as insect pollinated and wind pollinated flower is concerned, okay, insect pollinated flower and wind pollinated flower. So as far as insect pollinated flower is concerned, it's a bit different as compared to the wind pollinated flower. It has got scented, broad, colorful petals, as well as a very detailed and very attractive structures. Because in these type of flowers, certain vector is involved to transfer the pollen grains or to carry out the process of reproduction in that specific type of plant. Here is the ovary and ovule, as well as the whole female reproductive system, and this one is the androecium or stamens, that is the male reproductive system. Okay, and as far as the wind pollinated flowers are concerned, I'm not going to take the bright colors, rather I take a very light and dull color like green, non-attractive, or light blue, because they do not have any concern with the attraction of the living vector. ठीक है, इनकी बेसिकली जो होती है एक स्टेम सॉर्ट की जो है स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके अलावा इससे बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना कि आई मीन ग्लूम्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट हुए होते हैं। अच्छा, जहाँ तक ग्लूम्स का ताल्लुक है तो वो भी जैसे कहते हैं ना मॉडिफिकेशन है पेटल्स की। लाइक दिस। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये है चाइना रोज, ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की, और ये जो है ये ग्रास फ्लावर, ठीक है, विंड पॉलिनेटेड की एग्जांपल। अच्छा, और इसके अंदर जो है, चूंकि ग्रास फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, तो इसमें ल्यूम्स जो होते हैं जो कि पेटल्स की जगह पे आए हुए होते हैं, कलरफुल पेटल्स की जगह पे, तो वो जो है ना एक से ज्यादा होते हैं। अच्छा, और इनमें जो है कोई इतनी अट्रैक्शन नहीं होती, ना सेंट होता है, ना कलर होता है, और ना ही कोई और ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो किसी लिविंग वेक्टर को अट्रैक्ट कर सके, रादर दे आर ओनली फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस of the male and female reproductive organs which are present in the grass flower. अब ये ब्लूम और बना देते, this is also for the protection. अच्छा,
अच्छा, एक ब्लू ये वाला बना देते हैं, just for protection and protecting the male and female reproductive parts. Now, from here, the very unattractive and ovular shape ovary is there, and with brushy stigma. अंदर इसके ओव्यूले ओवल शेप की ओवरी रहती है इसके ज्यादातर, ठीक है, और इसके साथ ना ब्रशी स्टिग्मा होता है। ओके, अच्छा, और इसके साथ दो तरह के फ्लावर होते हैं। ये स्टेमन्स जो होते हैं वो पेंडुलस होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए, प्रोट्रूडिंग होते हैं बहुत ज्यादा, और ब्रॉड होते हैं, एक्सपोजिंग होते हैं बहुत ज्यादा। ओके, प्लीज म्यूट योर माइक। Very protruding, pendulous, and very exposing male reproductive as well as female reproductive organs, because they don't have any sort of living vector that focus their pollination to the specific organ system. So brushy stigma, another female part ovary is there. Very undefined, very undefined. Okay. It's a bisexual flower, and in one twig, two flowers are present simultaneously. Okay, so these are the non-flowering glumes, non-flowering glumes. Okay, and they are only for the protection. This is the brushy stigma, or this one is also the brushy stigma, and this one is the ovary, ovule. Okay, and these are the pendulous stamen pendulous. ओके, पेंडोलस स्टेमिल्स होते हैं ये, और टेटनीज के बाहर को जिसे कहते हैं इस तरह के स्टेमिल्स होते हैं, एंड दे हैव गॉट वेरी एक्सपोजिंग पोलन ग्रेन्स ऑन दैम। पोलन ग्रेन इनके ऊपर बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, and the ratio of pollen grains is much higher as compared to the insect pollinated flower stamens pollen grains. ये बहुत ज्यादा होते हैं, the numbers are very much high. The stigma is brushy in order to catch pollens, ठीक है, जितना ज्यादा वो एक्सपोज होगा, ब्रशी होगा, उतना ही ज्यादा इजीली वो कैच कर लेगा, ठीक है, and this one is the stalk. Now let's come towards the insect pollinated flower. Broad, colorful, sometimes scented petals, ठीक है। अब ये scented होती है, broad होती है, colorful होती है, because in order to attract the
what can I say, bees or flies as a vector to conduct the process of pollination. And they have got very upright filaments and non-protruding anthers. That means stamens are localized. Stamens are localized. That means that they are not very much exposed. They are present inside the roll of the flower. And the stigma is non-brushy, brushy, sticky stigma as fragrance and scents to attract the vector. This one is the stalk. क्या हो रहा है यहाँ से बार-बार? Okay. ठीक है. So that's how there is a big difference between the insect pollinated flower and the wind pollinated flower. The insect pollinated flower is very much what can I say, exposing. That means the colors are very much exposed. Scent is very much they are usually highly scented, and the nectar is very sweet to attract the vectors. Whereas wind pollinated flower, the vector is the wind, which is a non-living thing, and it does not require any sort of broad colorful petals to carry on the what can I say, stamens, pollen grain from one flower to another flower, and the stamens are very much pendulous. That means that they are very much exposed to the environment. As long as they are exposed to the environment, wind can easily throw them away from one flower to another flower, और pollination बहुत आराम से हो सकती है. That's a major difference between the wind pollinated as well as the insect pollinated flowers. Okay, and now we are moving towards the fertilization and post fertilization changes. Okay. Okay, fertilization and post fertilization changes. And fertilization and post fertilization changes, we have taken the female reproductive organ को हमने ले लिया. अच्छा, इसको हम select करके, ये basically stigma है. This one is the style. This one is the ovary wall, ovary, placenta, and then ovule, funicle. Last class के अंदर इसकी सारी डिटेल मैंने बता दी थी. ठीक है, अब जरा सा हम ये देख लेते हैं कि अब देखिए ये यहाँ पे जो है ना ओव्यूल बना दिया है. अब इसके अंदर दो न्यूक्लियसेस होते हैं. There are two nucleuses present inside the ovule. One is the definitive nucleus and other one is the ovum. Okay. I am going to label it after certain time period. लेकिन पहले भी मुझे एक चीज समझानी है आप लोगों को. अच्छा, एक और चीज ये कि यहाँ से जो है ना एक जिसे कहते हैं ना कि ब्रिज सा बना हुआ होता है जो कि ओव्यूल और प्लासेंटा के साथ एडजस्ट हुआ होता है. ये पैसेज प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए. पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर होती है. अब ये इस तरह की डायग्राम बना के आपको दे दी जाती है और कहा जाता है कि प्लीज शो द ड्राइंग इन विच द पोलन ट्यूब का जो पाथ है वो उसको आपने बताना है कि कहाँ से कहाँ आके और फ्रॉम वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. अब बेचारे बच्चे जो होते हैं ना वो यहाँ से पूरी पोलन ट्यूब बनाते हैं बजाय इधर से इसको क्रॉस करा के फर्टिलाइज करवाने के. पोलन ट्यूब को ये वो समझते हैं ओपनिंग है यहाँ से करवा देते हैं. नो, नॉट लाइक दिस. ये ओपनिंग जो है सिर्फ और सिर्फ वेस्कुलर बंडल्स के लिए होती है कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं स्टॉक के थ्रू यहाँ पे आके फूड, न्यूट्रिएंट मटेरियल और वाटर जो होता है वाटर कंटेंट को सब प्रोवाइड कर रहे होते हैं. इसके अलावा जब मैच्योर सीड हो जाता है तो जो टेस्टा होता है उसकी अंदर एक छोटा सा जिसे कहा जाए होल होता है और उस होल के थ्रू जो है वाटर जाता है और जब सीड जर्मिनेशन होती है तो वो टेस्टा जो होता है वो हाइड्रेट होके फूल के और क्रैक होता है उस पानी, वहां से पानी एंटर होने की वजह से. खैर, दिस ब्रिज पोर्शन इज द माइक्रोपाइल. अच्छा, ये जो माइक्रोपाइल होता है इसी की ब्रिज से
आप जो है ना ओव्यूल को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक बारीक सी लाइन चल रही होती है, टिश्यू की लेयर चल रही होती है, इससे ओव्यूल दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये हार्ड सीट कोट का होता है, बनता है मेच्योरिटी के बाद, और इनर वाला जो पोर्शन होता है ये टैग्मा का होता है। दैट मीन्स कि वो जो कागजी सा कवर होता है सीट के ऊपर, बादाम के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है, पिस्ते के ऊपर बारीक सी एक झिल्ली नजर आ रही होती है। ये चिलगोजा जब हम छीलते हैं उसका हार्ड शेल जो होता है उसे हटाते हैं तो उसके अंदर से एक कागजी सा गुड़गुड़ा सा जो स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, कवरिंग जो निकल रही होती है वो टैग्मा होती है। ठीक है, ओके। सो मेरे ख्याल से अब आपको स्क्रीन नजर आ रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हैव यू सीन द स्क्रीन क्लियरली? अच्छा, अब देखो ये जो चीज है ना, ये बेसिकली आपका नॉर्मल एक ऐसा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जिसके अंदर अभी कोई भी तब्दीली नहीं आई है। ठीक है, ये एक प्रॉपर बना हुआ स्ट्रक्चर मौजूद है, और इसकी लेबलिंग अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, कर देते हैं ताकि जो है ना रिवीजन में आसानी भी हो जाए। ये आपका हो गया स्टिग्मा। ठीक है, स्टिकी होता है, इसमें जैसे कहा जाए कि नेक्टर निकल रहा होता है। फिर उसके बाद ये है स्टाइल, और ये है ओवरी, ओवरी बॉल। ठीक है, और ये अंदर जो है ये ओवरी है जो फ्लैशी स्ट्रक्चर बनाएगी जब ग्रो करेगी। अच्छा, दिस वन इज द प्लासेंटा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो होता है, कहीं कहीं बुक्स के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है इसको भी प्लासेंटा कहते हैं। दोनों ही सही है। अच्छा, फिर इसके अलावा जैसे कहा जाए कि आपकी ये वाली जो ओपनिंग है जहाँ से बच्चे बेचारे गलती से फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं, दिस वन इज नॉट द प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इट्स अ फनिकल। ठीक है, और बाकी ये जो है ना इसको हम बाद में लेबलिंग करेंगे, पहले हम जो है इसकी फ्यूजन देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे बड़ा करके बना देती हूँ और इसकी लेबलिंग यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, जो आपका अंदर का जो ओवम है, ठीक है, इसके साथ ब्रिज एक बना हुआ होता है ऐसे करके, जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। और ये ब्रिज जो होता है ये अंदर मौजूद सीट का जो प्लासेंटा होता है उसके साथ अटैच हुआ हुआ होता है, जो आगे जाके फनिकल बना रहा होता है। ये प्लासेंटा बन रहा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ही इसको कवर कर रहा है ऐसे करके। ये मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया है ताकि इजीली समझ आ जाए। ये ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से फर्टिलाइजेशन होगी। अब क्या है कि ये जो फनिक, ये जो आपका माइक्रोपाइल है, इसमें दो हिस्सों में टिश्यू की एक लेयर जो होती है वो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है पार्शियली। ठीक है, जब सीड मेच्योर होने लग जाता है तो ये वाला पोर्शन जो है वो एक टेस्टा बनाता है, एक टेक्मा बनाता है। अच्छा, इसके अंदर जो है दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस होता है जो कि ब्लू कलर का बना रही हूँ, और ग्रीन कलर वाला जो है वो है हमारे पास ओवम। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी लेबलिंग देख लेते हैं। ठीक है, ये है बस हमारा, जी बेटा, ये दोनों न्यूक्लियस ही है। जी जी, ये दोनों न्यूक्लियस है। ये 2n है और ये n है, और ये 2n नंबर का है। ये फुल नंबर का न्यूक्लियस है और ये हाफ नंबर का है। इनफैक्ट बोथ आर हाफ इन नंबर, लेकिन ये कि जिसे कहा जाए कि ये दिस वन टेक्स प्लेस इन द माइटोसिस, अभी मैं बताती हूँ, और ये मियोसिस के थ्रू बना हुआ होता है। अच्छा देखो, ये यहाँ पर जो है, यस Miss, what is micropyle then? अच्छा देखो, ये जो है बेसिकली हमारे पास है प्लासेंटा। अच्छा हाँ, बीच में मैं भी एक क्लास रखूंगी एक्स्ट्रा, उसमें आ जाना, उसमें ईयरली पास पेपर स्टार्ट करने हैं। ठीक है, और उसी में मैं एक दो एटीपी के भी करा दूंगी। ठीक है, प्लासेंटा ये हो गया। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास है माइक्रोपाइल। ये देखो, ये यहाँ पे मौजूद है। इधर लेबलिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन दिखानी है। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये वाला, ये है टेस्टा। ठीक है, और ये है टेग्मा, बारीक छिलका जो होता है।
जो सीट के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, ये है हमारे पास फनिकल, सही है। अच्छा ये जो है ना, ये बेसिकली है डेफिनेटिव न्यूक्लियस, डेफिनेटिव न्यूक्लियस। और ये जो है ना, ये है ओवम, ठीक है। इनके क्या फंक्शन है ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले फर्टिलाइजेशन देखते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट ऑन इट। तो जो पोलन ग्रेन सबसे पहले आके डिसॉल्व कर देता है इसको, एक्साइन और इंटाइन को, और स्टिग्मा की जो सेल वॉल है, लेयर है, उसके साथ वो जो होता है तो मिटाना निशानी बन रही है, पूरा मिट जाएगा, बस ये समझ जाओ कि ये डिसॉल्व हो गई है, ठीक है। अब जो है ना, ये यहाँ से पोलन ट्यूब ओरिजिनेट होने लग जाएगी। अच्छा, मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहाँ पे बना के बता देती हूँ कि पोलन ट्यूब जो होती है वो किसके जरिए बन रही होती है, ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस के जरिए, और पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस आ रहा होता है। पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था, तुमने यूट्यूब पे जो वीडियो पढ़ी है उसमें जाके देख लेना, ठीक है। ये वाला जो है हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस है, और ये वाला जो है हमारा ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें भी दो होते हैं, सही है। ये हमारा है जनरेटिव न्यूक्लियस, जीएन लिख रही हूँ, ठीक है। और ये हमारा है ट्यूब न्यूक्लियस, टीएन, सही है, या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, बीएन, सही है। अच्छा, अब ये एंटर तो हो गई, सही है। अब यहाँ पे ये एंटर हो गई है, और ये अपने साथ जो है ये वाला ट्यूब न्यूक्लियस जो है ये लेके पूरा नीचे तक पहुंचेगी, उसके पीछे पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस भी आएगा। सो मैं फाइनल पिक्चर बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार मिटाऊंगी तो पूरी डायग्राम जो है वो खराब हो जाएगी। ये यहाँ से ऐसे ट्रेवल करती 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 ये जनाब में एंटर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये डिसॉल्व कर रहे होते हैं एंजाइम। जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो पोलन ट्यूब ही नहीं बन पाता, बल्कि ये जो जितनी भी वॉल्स है ना जहाँ से ये पास हो रहा है, इसमें ये सारी वॉल्स को डिसॉल्व करवा रहा होता है, हाइड्रोलिसिस करवा रहा होता है। अब देखिए, इसमें दो तरह के न्यूक्लियस आएंगे। सबसे फ्रंट के ऊपर सामने तो जो है जनाब ये चल रहा है इसका ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके पीछे पीछे जो फॉलो होता हुआ आ रहा है वो है इसका जनरेटिव न्यूक्लियस, जिसमें गैमेटिक स्ट्रक्चर मौजूद है। अब जरा हम इसकी लेबलिंग करते हैं, ठीक है। ये है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, दिस वन इज द न्यूक्लियस, और ये जो है जनरेटिव न्यूक्लियस। अच्छा, ट्यूब न्यूक्लियस जो है ना, वो जब यहाँ पहुंच जाएगा तो ये इसको डिसॉल्व कर देगा, और यहाँ से ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खत्म हो जाएगा। So what happens when the tube nucleus dissolves, the generative nucleus gets entered, ठीक है। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये वाला पोलन ट्यूब से ये इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, और ये यहाँ पर जो है डेफिनेटिव न्यूक्लियस होगा, और दूसरा जो होगा ये होगा ओवम, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि अब आगे कौन सा न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज होगा, वो मैं मैग्नीफाई करके बड़ा करके तुम लोगों को बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम बताते, देखो, अब हम सिर्फ बात करेंगे ओवम की, ओव्यूल की, सॉरी, ठीक है, जिसके अंदर ओवम मौजूद है, जिसमें डेफिनेटिव न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अंदर तीन तरह के न्यूक्लियस इस वक्त मौजूद है। एक हमारे पास है डेफिनेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, और एक हमारे पास मौजूद है ग्रीन कलर का ओवम, ठीक है, और एक हमारे पास मौजूद है बाहर से आया हुआ पोलन ट्यूब से जनरेटिव न्यूक्लियस, राइट। तीन न्यूक्लियस है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस,
DN, generative nucleus, GN and ovum, 3 न्यूक्लियसेस। अब होगा ये कि जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है ये दोबारा से 2 मजीद न्यूक्लियसेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह बनाऊंगी कि इसके कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये 2 हिस्सों में जब डिवाइड होगा तो चले हम इसको ऑरेंज कलर से बनाते हैं। दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो नाउ दे आर कॉल्ड द मेल गैमीट्स। अब ये क्या कहलाएंगे? मेल गैमीट्स कहलाएंगे ये दोनों। मेल गैमीट्स। ठीक है, अब इसमें से एक जो होगा वो फ्यूज करेगा डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ। व्हेन इट गेट्स फ्यूज्ड विद द डेफिनेटिव न्यूक्लियस, दोनों कलर दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि ये पता लगे कि कौन सा किसके साथ फ्यूज हो रहा है। तो ये जो अब ये फ्यूजन जो हो गई, तो अब जो है ये डेफिनेटिव न्यूक्लियस नहीं रहा, बल्कि ये कॉटिलेडन्स बनाएगा जब सीड ग्रो करेगा, प्लस एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बेसिकली वो होता है जैसे हम जैसे बड़े मजे से तुम लोग काजू खाते हो चबा चबा के, और जैसे कहा जाए कि सीड्स के अंदर जो गूदा होता है, गिरी होती है, और जो उसका ईटिंग मटेरियल होता है वो सारा का सारा एंडोस्पर्म होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और टेस्ट होता है, एवरीथिंग जो जितनी भी अच्छी चीज होती है वो सारी की सारी ये जो है जैसे कहा जाए कि ये वाला जो डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ जो मेल गैमीट फ्यूज होगा वो बनाएगा। ठीक है, अच्छा, बाकी ये जो दूसरा वाला मेल गैमीट है, जब ये इसके साथ फ्यूज होगा, इसके साथ, इसके साथ ओवम के साथ जब ये फ्यूज होगा तो ये बनाएगा जाइगोट। ये क्या बनाएगा? जाइगोट, ये वाला। असल में तो ये असल में तो जिसे कहा जाए कि ये फ्यूजन है असल वाला, तो ये जो है ये बिकम्स जाइगोट। ये जाइगोट बनाती है इसने। सही है, अच्छा, ये जो जाइगोट है ये क्या बनाएगा? होल प्लांट स्ट्रक्चर। होल प्लांट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब क्या है, देखो दोबारा से रिवाइज करते हैं किस तरीके से कि जो पोलन ट्यूब है, पोलन ग्रेन जो है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियसेस होते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं? एक होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, या जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियसेस होते हैं। जबकि जो ओव्यूल है उसके अंदर भी 2 न्यूक्लियसेस होते हैं। एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस होता है डीएन, और दूसरा होता है हमारे पास ओवम। ठीक है, अच्छा, जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली क्या चीज बना रहा होता है? एक सेकेंड। ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो बना, या वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है ये बना रहा होता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब का काम सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन का है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है इट गेट्स डिसॉल्व व्हेन इट द पोलन ट्यूब पेनिट्रेट्स इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जब पेनिट्रेट हो जाती है तो ये सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जेनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है? जेनरेटिव न्यूक्लियस अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इसको मैं मिटा देती हूँ कि भाई इसका तो काम ही खत्म हो गया। अब क्या होगा कि जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा, 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। एक और दोनों जो होंगे वो क्या बनाएंगे? मेल गैमीट। मेल गैमीट, मेल गैमीट। ठीक है, अच्छा, अब होगा ये कि ये मेल गैमीट्स जो हैं ये बेसिकली फ्यूज होंगे एक जो होगा वो फ्यूज होगा डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ, और ये फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, और दूसरा जो है वो फ्यूज होगा किसके साथ? दूसरा फ्यूज होगा ओवम के साथ, और वो फॉर्म करेगा
zygote. Now here the fertilization is completed. Okay.